Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine. Today we are here to start text for class 6. Before starting our text, let's discuss something. As we all know that Allah subhanahu wa ta'ala is the master of this universe. And Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of Allah. Allah sent his last book Quran Majid on Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. From Quran Majid we get guidance for life. If we spend our life according to Sunnah of our Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and follow the guidelines which are mentioned in the Holy Quran, we will get success not only here but in the hereafter, and we'll go to Jannah inshallah. And here we are going to discuss another aspect of our dear Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's life, which is fair dealing. And before starting our topic, here's the question: what is fair dealing? Let's discuss fair dealing with the help of an example. Okay, here we have Ali and Ahmad. They are brother. One day while they were working, Ali's notebook was finished and Ali did not have money. He asked Ahmad to buy him a notebook because Ahmad had pocket money with him. Ali promised Ahmad that he will return his money when they'll go back home. And Ali actually returned Ahmad's money जब वो लोग घर वापस गए. तो अली ने जब अहमद की मनी वापस कर दी तो दैट इज़ कॉल्ड फेयर डीलिंग. ओके. और अगर अली मना कर देता है अहमद की पॉकेट मनी वापस करने से, क्योंकि यूज़ तो अली ने की थी ना, तो फिर क्या होता, फिर वो हो जाती अनफेयर डीलिंग. इन द सेम वे जब आप लोग क्लासरूम में इकट्ठे बैठे होते हैं और किसी की पेंसिल फिनिश हो जाती है या कोई स्टेशनरी आइटम नहीं होता और आप अपने फ्रेंड से बोरो कर लेते हो और नेक्स्ट डे आप लोग उसी तरह का या उससे बेहतर ला के उसे रिटर्न कर देते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्ज़ाम्पल ऑफ फेयर डीलिंग. ओके. And here's the question what are the characteristic of fair dealing? A person who is fair in his dealing, उसमें क्या characteristics होती हैं? तो हम लोग ये कह सकते हैं a person who deals with others money and things carefully without cheating, तो that is called fair dealing. And we can say that Ali is a truthful and trustworthy person because Ali की बात का अहमद ने एतबार किया और अली ने प्रूव भी किया अपने आप को that he is truthful and trustworthy and he deals with his money carefully. So that is called fair dealing, and the characteristic of fair person is truthful and trustworthy. So let's start our main topic. Okay, now let's discuss the picture which is present on our book. ओके, लेट्स सी. हेयर आई हैव अ पिक्चर फॉर यू. और ये किस चीज़ की पिक्चर है? ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिक्चर है और ये इस्लाम की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद की पिक्चर भी इसे कहते हैं. और एक और पिक्चर आप लोगों को दिखाती हूँ. हेयर वी हैव एंड दिस इज़ द मस्जिद विच इज़ कॉल्ड मस्जिद नबवी. और ये मस्जिद है जिसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे डियर प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत हिस्सा भी लिया था. सो लेट्स स्टार्ट आवर मेन टॉपिक. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फर्स्ट लेसन, फेयर डीलिंग ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एंड द मीनिंग ऑफ फेयर डीलिंग इज़ मुनसिफाना लेन देन. And we have discussed के what is fair dealing, and we have also discussed के what are the characteristic of a fair trader. Now we are going to discuss some Urdu words meaning before starting our lecture. And what you have to do, you have to learn these Urdu words meaning before starting the reading of your chapter. Because when we'll do the reading ना, तो अगर आपको पहले से लर्न होंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त होगा. फिर आप लोग आसानी से मीनिंग समझ सकेंगे और आप लोगों को ट्रांसलेशन समझ आती जाएगी. As I've told you कि fair dealing of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a topic name, and we have words in first paragraph which you have to learn by heart, which first one is truthful, सच्चे. You have to repeat these words after me, और आप लोग पॉज करके भी इसे रिवाइज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और इनके स्पेलिंग भी लर्न करेंगे. बिकॉज आई टेक योर डिक्टेशन बिफोर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट लेसन टॉपिक. ओके. ट्रूथफुल, सच्चे, ट्रस्टवर्दी, अमानतदार,
ट्रेड तिजारत, इम्प्रेस्ड मुतासिर हुए, स्किल्स महारतें। आप लोग अपनी रफ़ कॉपी और पेंसिल निकालें, उसके ऊपर आप लोग लिखेंगे भी, इनको लिख के प्रैक्टिस भी करेंगे और इनको लर्न भी करेंगे बिफोर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट पैराग्राफ. So let's start book reading. Okay, after discussing the meaning, let's start our reading from the book. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was always fair and honest in his dealing with other people even before his nabuwat. So the meaning of this line is this कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ऑनेस्ट थे और फेयर थे अपनी डीलिंग में, अपनी नबूवत से पहले भी, यानी कि जब वो नबी सेलेक्ट नहीं हुए थे अल्लाह ताला की तरफ से, तो उससे पहले भी वो बहुत फेयर और ऑनेस्ट थे अपनी डीलिंग में लोगों के साथ. ही वॉज नोन एज ट्रूथफुल एंड ट्रस्टवर्दी, और इसी वजह से वो जाने जाते थे सच्चे और ईमानतदार के तौर पर, यानी कि उन्हें लोग पहचानते थे उनकी इन दो ट्रेड्स की वजह से, इन दो खूबियों की वजह से कि वो ट्रूथफुल थे और ट्रस्टवर्दी थे. और हमने ट्रूथफुल का भी मीनिंग पढ़ा है और ट्रस्टवर्दी का भी पढ़ा है. ट्रूथफुल सच्चे एंड ट्रस्टवर्दी ईमानतदार. और जैसा कि आप लोगों ने पहले भी उनके बारे में जब सुनी होंगी तो आप लोग जानते होंगे कि लोग उन्हें सादिक और अमीन के नाम से जानते थे. यस, लेट्स रीड अनदर वन. इन हिज यंग एज, यानी अपनी बहुत यंग एज में, बहुत बचपन से ही बिकेम अ ट्रेडर. हमने ट्रेड का मीनिंग पढ़ा. क्या है ट्रेड का मीनिंग? तिजारत. तो यहाँ लिखा है ट्रेडर. ट्रेडर क्या होता है? अ पर्सन हु डज ट्रेड. तो ये हो जाएगा ट्रेडर, ऐसा शख्स जो ट्रेड करता है, लेन का चीज़ें ख़रीदता और बेचता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडर, जिसे हम उर्दू में कहते हैं ताजर. ही बिकेम अ ट्रेडर, वो ताजर बन गए. ही ट्रेडेड, उन्होंने तिजारत की, विद द अदर पीपल्स मनी, दूसरे लोगों की मनी से, विद ग्रेट केयर, बहुत एहतियात के साथ, एंड वॉज वेरी सक्सेसफुल, और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहे, उसमें बहुत ज़्यादा कामयाब भी हुए. द पीपल ऑफ मक्का वर मच इम्प्रेस्ड बाय हिज ट्रेडिंग स्किल. मक्का के लोग उनसे बहुत मुतासिर हुए. इसका भी मीनिंग हमने पढ़ा है. बाय हिज ट्रेडिंग स्किल्स, उनकी जो ट्रेड यानी कि तिजारत करने की महारतें थी उनसे, एंड फेयर डीलिंग, और मुनसिफाना लेन देन की वजह से मक्का के लोग उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए. दे हैड कंप्लीट ट्रस्ट इन हिम. मक्का के लोग, पीपल ऑफ मक्का हैड कंप्लीट ट्रस्ट इन हिम. दे हैड कंप्लीट ट्रस्ट इन हिम, उन्हें उन पर मुकम्मल भरोसा था. इट वॉज हिज ऑनेस्टी एंड फेयर डीलिंग इन बिजनेस. ये उनकी ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, एंड फेयर डीलिंग और मुनसिफाना लेन देन था इन हिज बिजनेस, अपनी तिजारत में, दैट इम्प्रेस हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिसे बहुत इम्प्रेस किया हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने. सो दैट्स ऑल. What you have to do, you have to pause this video, you have to read this lesson at least for 5 times, and you have to memorize these Urdu words meaning and the difficult words with their spellings also, because I'll take your dictation before starting our next paragraph. Take care. Allah Hafiz.